Hi friends, so in this video we are going to talk about the EasyFNO. EasyFNO.com कैसे आप यूज कर सकते हो and why EasyFNO.com is different from other OI analytical websites or the websites where you can analyze the option chain and open interest. So EasyFNO is very simple website where you can use this uh, data tool to buy or sell any bank nifty call or put options. You can, if you're a buyer, you can use, if you're a seller also, you can use this website. So this data is very different from the OI data because OI में आपको सिर्फ ऑप्शन चेन के जो चेंज इन OI डेटा है वही आपको सब जगह मिलेंगे, चाहे आप बात कीजिए आपके सेंसिबल की या ऑब्स्ट्रा की या एनी अदर वेबसाइट वेयर यू आर checking the OI. But the feedback of OI is that OI is only reliable up to 50-60%. But how you can make the more reliability on the data is something we are going to talk about today. So यहाँ पे आपको जैसे ही आप लॉग इन करोगे तो डैशबोर्ड 1 और डैशबोर्ड 2 मिलेगा. दिस इज टोटली customizable. You can customize this dashboard. You can just go to the config widget. You can as per your choice you can just take or untick, right? So it will be shown on the dashboard 1, and dashboard 2 also you can make one more dashboard as per your choice. Then if you go to the nifty dashboard, यहाँ पे आपको हमने निफ्टी का एक डैशबोर्ड बना के दिया है. First you will see that index conviction data, then you will see that nifty call and put writing overview, then you will see that nifty interest open interest build up, change in OI build up, and then you will see nifty price and how the data trend is going on, option conviction data. First of all, what is option conviction? Option conviction is a data of combination of option chain का OI, change in OI plus volume which is pending volume. What do you mean pending volume? Means pending orders की जो volume है market में, जो order pending है अभी तक fulfill नहीं हुए, unfilled order है, उनका volume है call और put side का, right? तो यहाँ पे आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिलता है, उसको हम बोलते हैं ऑप्शन कन्विक्शन डेटा. इफ सपोज एनी पर्टिकुलर टाइम निफ्टी में जो कॉल राइटर ज्यादा है, कॉल राइटर का मतलब जो लोग बेरिश है, बेरिश ज्यादा है, तो उसको हम रेड लाइन से बताएंगे. और पुट राइटर का मतलब है जो बुलिश लोग हैं उनको हम ग्रीन लाइन से डिनोट करते हैं, राइट? तो यहाँ पर आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रहा है कि ग्रीन लाइन अगर रेड लाइन के ऊपर चल रही है तो मार्केट वहां से पॉजिटिव हो सकता है, और अगर रेड लाइन ऊपर चल रही है तो मार्केट नेगेटिव हो सकता है, राइट? तो ये आप इजीली देख सकते हो निफ्टी कॉल पुट राइटिंग ओवरव्यू. उसके बाद इफ यू टॉक अबाउट द फर्स्ट टेबल, लेट्स गो टू द फर्स्ट टेबल. दिस इज कॉल्ड अ कन्विक्शन टेबल. कन्विक्शन टेबल का मतलब है कि अभी निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की कंडीशन क्या है, बुलिश है, माइल्ड बुलिश है, या साइडवेज है, स्ट्रॉन्ग बेरिश है. तो यहाँ पे हमने बुलिशनेस को टू पार्ट में डिवाइड किया. वन इज माइल्ड बुलिश, वन इज स्ट्रॉन्ग बुलिश. सिमिलरली बेरिशनेस ऑल्सो माइल्ड बेरिश एंड स्ट्रॉन्ग बेरिश, एंड देयर विल बी वन साइडवेज, राइट? तो जब भी हम निफ्टी या बैंक निफ्टी में किसी में भी ट्रेड करते हैं, सो वी हैव टू सी बोथ द ट्रेंड, निफ्टी ट्रेंड also and bank nifty trend also, then only we will get a conviction. Suppose both the nifty bank nifty are in same direction and one is mild bullish and other one is strong bullish, so this we say that it's a strong conviction. Means दोनों में से कोई सा भी एक, any one should be strong and other can be mild or strong both. सिंपल वे में आप समझोगे कि अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की डायरेक्शन एक तरफ है, यानी इफ बोथ आर गोइंग इन सेम डायरेक्शन एंड वन इज वेरी स्ट्रॉन्ग बुलिश मींस अदर इज माइल्ड आल्सो, इट्स फाइन, बिकॉज वो जो स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस है वो दूसरे जो इंडेक्स पे भी इंपैक्ट करेगी और वहां से भी आपको पॉजिटिवनेस दिखेगी, एंड वाइस वर्सा. सपोज इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द bearishness, so one index is strong bearish and other one is also strong bearish, so it means it's a good condition that market may fall down or data trend may fall down. But first and foremost thing we should know that you have to be sitting in the market at the very beginning of the trend. It's not like this कि आपको जो सिग्नल मॉर्निंग में आ गया है कि बेरिश है और आप जाके 1 बजे 12 बजे जाके एंट्री ले रहे हो, वो एंट्री ले सकते हो लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस के बाद में किस तरह से पुल बैक पे एंट्री होती है. बट you have to understand that many people are saying that जो ऑप्शन कन्विक्शन यूज कर रहे हैं, अगर वो बिगनिंग ऑफ द ट्रेंड में अगर राइट डायरेक्शन में बैठ जाते हैं तो उनको अच्छा प्रॉफिट मिलता है.
लेकिन अगर ट्रेंड के चलते चलते बीच में कहीं आप देख रहे हैं कि अभी तक स्ट्रॉन्ग बेरिश स्ट्रॉन्ग बुलिश आ रहा है, लिखा आ रहा है, तो बार बार हम ट्रेंड कर एंट्री करते रहे, तो दैट इज अ रॉन्ग अप्रोच. सो यू हैव टू think that कि market cannot be bullish forever, market cannot be bearish forever. So you have to start at the very first point. So यहाँ पे at the when I say at the very first point, then let's say market open at 9:15, 10 to 15 minutes just give us the time, डेटा को थोड़ा टाइम दीजिए. आई एम टॉकिंग अबाउट मंडे टू थर्सडे, मंडे टू थर्सडे 10 से 15 मिनट या आधे घंटे का मैक्सिमम आप टाइम दीजिए. उसके बाद डेटा में आप बिल्टअप देखिए किस तरह से डेटा हो रहा है. अब ये डेटा है क्या? इट्स नॉट जस्ट ओआई डेटा, जस्ट ओआई का कॉल राइटर कॉल डेटा नहीं है. यहाँ पे हमने ऐड किए हैं पेंडिंग वॉल्यूम्स ऑल्सो. पेंडिंग वॉल्यूम मतलब पेंडिंग ऑर्डर्स, अनफिल्ड, या जिसको बोलते हैं कि जो ऑर्डर फुलफिल नहीं हुए उनको हमने ऐड किया है. वो कहाँ से मिलता है? वो एनएससी की वेबसाइट से आपको मिल जाएगा, लेकिन आपको हर स्ट्राइक प्राइस का देखना पड़ेगा. यहाँ पे हमने उनको डेटा को परचेज करके उसको प्रॉपरली एक मेथड के रूप में, मतलब यहाँ पे उसको दिखाने की कोशिश की है प्रेजेंटेटिव मोड में. प्रेजेंटेटिव मोड में यहाँ पे देखो 3 मिनट का डेटा, 6 मिनट का डेटा और 9 मिनट का डेटा है. ठीक है, तो यहाँ पे डेटा जो है निफ्टी का है. हम निफ्टी में सबसे पहले चलते हैं मॉर्निंग में क्या हुआ है. लेट्स गो टू द फर्स्ट टिक. फर्स्ट टिक हैज कम एट 9:18 व्हिच इज माइल्ड बेरिश. ओके, तो इसका मतलब ये है कि निफ्टी अभी माइल्ड बेरिश है, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, डेटा को बनने दीजिए. और व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट मंडे टू थर्सडे, सो आपको कोई ना कोई एक जो स्टॉक जो है, एक निफ्टी बैंक निफ्टी है, वो कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्गनेस का साइन होना चाहिए. माइल्ड से काम नहीं चलेगा. ठीक है, उसके बाद हम चलते हैं यहाँ पे साइडवेज में. उसके बाद देखो माइंड बेरिश माइल्ड बेरिश माइल्ड बेरिश, यहाँ पे थोड़ा साइडवेज आ गया. 9:30 पे जो निफ्टी जो है साइडवेज है, तो इस समय यहाँ पे कुछ काम नहीं करना है आपको. जस्ट आपको बता रहा हूँ कि साइडवेज में मार्केट हो सकती है कि एक रेंज में बनी रहे, क्योंकि बिकॉज जो बुल्स एंड बियर्स है ऑलमोस्ट इक्वल है. उसके बाद वापिस देखो माइल्ड बुलिश होना शुरू हो चुकी है 9:51 से. उसके बाद और चलते हैं आगे. अब ये कंटिन्यूसली देखो डेटा बिल्टअप हो रहा है, और ये कंटिन्यूसली जो डेटा है यहाँ पे कॉल राइटर पुट राइटर, यानी कि ये जो कॉल राइटर है वो है बेरिश लोग, पुट राइटर है जो बुलिश लोग है. बुलिश लोग जो है 2.24 करोड़ है, और बेरिश है 1.57. तो यानी कि डिफरेंस जो आ रहा है वो 67 लैक्स के ऑलमोस्ट डिफरेंस आ रहा है. और ये देखो डिफरेंस कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, यानी कि 35, 37, 35, 41, 53, 50, 52, 56, 62, 67. सो ऑलमोस्ट ये कंटिन्यूसली 9:30 बजे से लगा के 9:30 के बीच में, यानी कि 10 to 10:30 कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है. और यहाँ पे आप देखेंगे, और फिर ये 70, 80, 85 तक चला गया, एंड देन यू सी 1 करोड़ तक भी चला गया, एंड देन यू सी 1.3, 1.5, 1.6, 1.7 ऑल्सो, 1.75 ऑल्सो. और यहाँ पे देखो 1.8, 1.6. सो ऑलमोस्ट ये काफी अच्छा डेटा बिल्टअप हो रहा है कॉल्स और पुट साइड में, जहाँ पे बायर्स एंड सेलर्स के बीच में डिफरेंस काफी अच्छा है. बायर्स आर मोर. और यहाँ पे आपको डेटा चेंज बताता है. डेटा चेंज मतलब प्रीवियस से अभी कितना डेटा चेंज हुआ है. और उसके बाद पीसीआर, यानी कि जो नॉर्मली आपको पीसीआर मिलता है, लेकिन ये नॉर्मल पीसीआर नहीं है. ये पीसीआर है चेंज इन ओआई प्लस वॉल्यूम्स जो है उसका पीसीआर है. इन द सेंस आप समझिए किसी चीज को. अगर मैं बात करूंगा कॉल राइटर की, कॉल राइटर कौन है? कॉल राइटर वो है जिन्होंने कॉल को राइट किया हुआ, यानी कि वो बेरिश है. ये तो एक डेटा हो गया. दूसरा डेटा हो गया वॉल्यूम्स का. वॉल्यूम्स का डेटा मतलब जो अभी आने वाला है, अभी तक आया नहीं है, अनफिल्ड ऑर्डर. अनफिल्ड ऑर्डर जो आपको एनएससी से मिल जाते हैं, कि ये मार्केट डेप्थ में जाके कि इतने बायर खड़े हैं मार्केट में या इतने सेलर खड़े हैं कॉल या पुट में, उसको हमने कंबाइंड किया है. तो सारे के सारे बुल्स लोगों को जो बुलिश है उनको एक साइड में रखो, सारे के सारे जो बेरिश है यू कीप इट एट वन साइड एंड जस्ट डू द नेटिंग ऑफ. देन यू विल गेट द अंडरस्टैंडिंग दैट whether bulls are more or bears are more. And then you will see the support resistance also based on this data, right? तो सपोर्ट रेसिस्टेंस पे अगर जैसे ही मार्केट सपोर्ट के पास आती है, तो यहाँ पे एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको बाय करने की मिल जाती है. even though if market is not near coming to support, you can use any of your strategy. You can use trend line, you can use moving average, you can use any of your strategy. You will get a good result out of it. So यहाँ पे आपको डेटा मिल रहा है एवरी 3 मिनट की टिक पे, एवरी 6 मिनट की टिक पे, और एवरी 9 मिनट की टिक पे. तो आपको पता चल रहा है कि अभी डेटा बढ़ रहा है या घट रहा है. निफ्टी का प्राइस कैसे चल रहा है? देखो कन्विक्शन का डेटा ऊपर ही जा रहा है, इसका मतलब मार्केट में बुलिशनेस है. और यहाँ पे आपको जो ये नॉर्मल जो सभी वेबसाइट मिलता है, ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप और चेंज इन ओपन इंटरेस्ट का बिल्टअप, उसके बेस पे मिल रहा है कि यहाँ पे कहाँ पे ग्रीन का मतलब है पुट राइटर और रेड का मतलब है कॉल राइटर. यानी कि ग्रीन किसी
भी स्ट्राइक प्राइस पे ग्रीन बहुत ज्यादा है, तो इसका मतलब वो अच्छा खासा सपोर्ट का आपके लिए काम करेगा। इंट्राडे में आपको चेंज इन ओआई देखना है, और अगर आप पोजिशनल ट्रेडर है तो आपको ओपन इंटरेस्ट देखना है। देन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको पता चलता है कि ग्रीन लाइन अगर ऊपर में है यानी कि बुल्स ज्यादा है, तो आपको मार्केट में बुलिशनेस दिखेगी। और ये आपको मैंने बता दिया कि जो डेटा हम नीचे की तरफ दे रहे हैं टेबल में, उसको हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को साथ में दे दिया। इसी तरह से बैंक निफ्टी का डैशबोर्ड है, आप देखिए यहाँ बैंक निफ्टी में भी निफ्टी बैंक निफ्टी का जो डैशबोर्ड है वो सेम ही है ऊपर वाला। देन निफ्टी में भी अगर देखेंगे तो ग्रीन लाइन ऊपर थी और रेड लाइन नीचे थी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी यही चल रहा है, तो इसका मतलब बोथ आर इन सिंक। ओआई का अगर बात करें तो यहाँ पे सपोर्ट है 45,500 पे, काफी अच्छा ग्रीन कैंडल है और काफी अच्छी ग्रीन बार है, सॉरी। एंड 45,400 also is a green bar, so it's a good support for intraday. And similarly you can see the continuously data is making higher high pattern, which is a good sign for the market. And how to take entry, I will tell you. If you are my student, if you have taken option firing course, index firing course, definitely you will be getting good opportunity to pull back. If even though you're not got that experience to learn the option index firing from me, that's fine. I will tell you how to take entry without having a knowledge of index firing. तो देखो 951 पे अगर बात करें तो जहाँ पे निफ्टी जो है बुलिश हो रही थी, माइल्ड बुलिश, लेकिन यहाँ पे अभी भी साइडवेज चला रहा है और ऑलमोस्ट 1021 पे दोनों सेम डायरेक्शन में आ गए, यानी कि निफ्टी भी माइल्ड बुलिश थी उस समय और बैंक निफ्टी भी माइल्ड बुलिश थी। अब देखो यहाँ पे 1045 माइल्ड बुलिश चल रही है, केवल दो स्टैक्स पे सब जो कि साइडवेज आई है, लेकिन कंटिन्यूसली माइल्ड बुलिश चल रही है। और डेटा में देखो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, 19 20 एंड देन 17 26 तक चला गया डेटा। और देखते हैं यहाँ पे इस तरह से आपको डेटा 27 लैक्स का डिफरेंस है बायर सेलर में, 32 लाख का डिफरेंस है, 33 लाख का डिफरेंस, तो ऑलमोस्ट ये स्टेगनेंट चल रहा है। अब जब आपको डेटा से पता चल जाता है कि हाँ डेटा स्टेगनेंटली इंक्रीज हो रहा है डेटा, राइट, आप इसको 6 मिनट में भी देख सकते हैं, 9 में भी देख सकते हैं, लेकिन बेस्ट आपके लिए 3 मिनट रहेगा। मैं जनरली 3 मिनट में देखता हूँ। तो यहाँ देखो 41 लैक्स और 41 लैक्स के आसपास कंटिन्यूसली सेम डेटा आपको दिख रहा है इवन 12 o'clock तक। उसके बाद देखिए 12:51 तक भी आपको सेम डेटा दिख रहा है। तो ये डेटा है जो आपको एवरी 3 मिनट की टिक पे आपको मिल जाएगा। सिमिलरली लेट्स गो टू द निफ्टी। निफ्टी को भी आपको इस तरह से देखना है कि क्योंकि मैं बाद में रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसको, तो आपको 12:51 के बाद का डेटा नहीं दिख रहा है, बट जनरली मार्केट में आपको पूरा 3:30 तक का डेटा दिखेगा, राइट, जब आप लाइव मार्केट में काम करेंगे। तो यहाँ पे आपको पता चल रहा है कि अभी सपोर्ट रेसिस्टेंस क्या है। अभी हम चलते हैं चार्ट के ऊपर, जहाँ से आपको एंट्री लेना है। डैशबोर्ड 2 मैंने आपको बता दिया, डैशबोर्ड 1 बता दिया। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अपने खुद के विजेट लगा सकते हैं, जो आपको डिलीट करना हटा सकते हैं। जनरली आप देखो यहाँ पे डैशबोर्ड 2 में आपको लेट मी जो शो यू डैशबोर्ड 1, यहाँ पे आपको सबसे पहले ऊपर एक इंडेक्स कन्विक्शन डेटा यहाँ से क्लिक कर दिया, तो देखो आगे यहाँ पे ये आप देख सकते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का है। उसके बाद निफ्टी का कॉल पुट ओवरव्यू, बैंक निफ्टी का कॉल पुट ओवरव्यू, जो कि कंटिन्यूसली ग्रीन लाइन ऊपर है, इसका मतलब बायर्स है मार्केट में। निफ्टी का ओवरव्यू है, चेंज इन वाई का बिल्डअप है। बैंक निफ्टी का है, निफ्टी का डेटा ट्रेंड है, निफ्टी का प्राइस, बैंक निफ्टी का प्राइस, बैंक निफ्टी का डेटा ट्रेंड, और निफ्टी के चार्ट जो टेबल है, निफ्टी की टेबल है, सिमिलरली बैंक निफ्टी की टेबल है। तो अभी आपको पता चल रहा है किस समय देखो क्रॉस ओवर हुआ है, ऑलमोस्ट ये 9:45 में यहाँ पे ग्रीन जो है ऊपर की तरफ जाने लग गया है और रेड जो है लाइन नीचे की तरफ जाने लगी। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी ये हो रहा है। तो ये आपको पता चल रहा है 10 साढ़े 10 बजे के आसपास में, 11 बजे के आसपास में आपको डेटा बिल्कुल क्लियर है, मार्केट में अच्छा खासा बाइंग चल रहा है। तो अब चलते हैं चार्ट की तरफ, बैंक निफ्टी के चार्ट की तरफ। बैंक निफ्टी ओपन हुई है, फर्स्ट कैंडल वाज वेरी रेड कैंडल, देन 9:15 पे देखो यहाँ पे एक अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनाई है, क्योंकि मार्केट यहाँ से नीचे जाने को रेडी नहीं है। देन मार्केट इज कंटिन्यूसली गोइंग इन वन डायरेक्शन। 10:30 पे देखो जब आपको मार्केट में डेटा पता चला है कि बुलिश है, तो 10:30 पे ये प्राइस हमारे जो पुल बैक जोन है, जिसको हम, ये ग्रीन क्लाउड आपको नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं इंडेक्स फायरिंग डी फायर पुल बैक जोन। तो पुल बैक जोन में जैसे ही मार्केट आता है, हमने यहाँ पे एंट्री लेना है। और देखो यहाँ पे काफी अच्छा ऊपर चला गया है, फिर देखो सेकंड टाइम फिर पुल बैक जोन में आया है और यहाँ पे काफी अच्छी एंट्री मिल रही है और मार्केट काफी अच्छा ऊपर जा रहा है। तो ये पुल बैक जोन को किस तरह से यूज करते हैं, ये आप इंडेक्स फायरिंग कोर्स में सीख सकते हैं। बट इवन इफ यू डोंट नो इंडेक्स फायरिंग, हाउ टू यूज द स्ट्रेटजी,
no problem. What you can do, you can use simply use your trend line method. Whatever strategy you're using, you can use. So let me just hide the DeFi cloud. You can see here, market is making higher high and higher low pattern. As per Dow theory, it is a positive sign for market, right? Now you see that market is, Bank Nifty is just taking support, 2 times support, and when it is coming to take 3rd time support, so here you can see one bullish candle, which is a hammer kind of candle where we have the long wick. Similarly, we have a tweezer bottom also. 2 to 3 candles are together with the same bottom. You can buy above this and keep stop loss just below to the trend line, right? And you can see afterwards good rally has been seen in बैंक निफ्टी. तो यही काफी अच्छी खासी 3 से 4 ट्रेड हमने आज की थी बैंक निफ्टी में इंडेक्स फायरिंग को यूज करके. पहली ट्रेड यहाँ पे, दूसरी ट्रेड फिर यहाँ पे लिए, 3rd ट्रेड यहाँ ली है, और 4th ट्रेड हमने यहाँ पे भी 2 ट्रेड और ली, क्योंकि यहाँ पे फिर आया था और डेटा कंटिन्यूसली बुलिश ही ट्रेंड में था. तो ये आपको इस तरह से डेटा को पता चल जाएगा कि ट्रेंड क्या चल रहा है, फिर आप अपनी स्ट्रेटेजी लगा सकते हो. अब दूसरी बात, अब सपोर्ट रेसिस्टेंस को कैसे यूज करना है. तो अब जाके मैं बताऊंगा सपोर्ट रेसिस्टेंस को यूज कैसे करते हैं. मैं निफ्टी के चार्ट पे, आपको बैंक निफ्टी के चार्ट बताता हूँ. तो यहाँ पे देखो सपोर्ट आपको मिल रहा है कब, जब अगर आप सपोर्ट की बात करेंगे ऑलमोस्ट 12 o'clock पे ये मिल रहा है 44,000, 45,400 एंड 45,300, और ये कंटिन्यूसली सेम चलता आ रहा है सपोर्ट रेसिस्टेंस, राइट. तो अभी हम जाके देखेंगे चार्ट पे कि उस सपोर्ट पे मार्केट अगर आया है क्या. तो मार्केट देखो यहाँ पे 45,400, यानी कि ये ऑलमोस्ट ये लेवल है. तो इस लेवल तक तो नहीं आया है, लेकिन मार्केट पहले ही घूम गया है. तो अगर यहाँ पे आता है तो मार्केट में अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी आपके लिए बन सकती है. और अगर यहाँ पे नहीं आता है, पहले आपको कोई ट्रेंड लाइन, इफ यू गेट एनी ट्रेंड लाइन, एनी काइंड ऑफ योर सपोर्ट इन द प्राइस एक्शन, यू कैन मेक योर एंट्री. सिमिलरली जो हम बात करें फ्राइडे की, तो मार्केट में डेटा काफी बेरिश था, ये हमने अब शेयर कर दिया था हमारे चैनल में. और वहां से देखो बार बार अगर मार्केट हमारे पुल बैक जोन में आ रहा है और अच्छा खासा वहाँ पे एक रिट्रेसमेंट दे रहा है और नीचे की तरफ मार्केट जा रहा है. तो अगर आपको नहीं पता है ये फायरिंग क्लाउड, नो इशू, यू कैन मेक योर ट्रेंड लाइंस और यू कैन मेक एनी ऑफ योर स्ट्रेटेजी. इफ इवन अगर आप बैंक निफ्टी की बात करें तो आप वी वेब को भी जनरली यूज करते हैं बहुत से लोग. तो वी वेब को यूज कर सकते हैं. तो बैंक निफ्टी फ्यूचर का चार्ट ओपन करूंगा यहाँ पे, बिकॉज कैश के चार्ट में आपको नहीं मिलेगा. तो फ्यूचर के चार्ट में मैंने आपको इसको रिमूव कर देते हैं थोड़ी देर के लिए, एंड लेट मी जस्ट पुट द वी वैप इंडिकेटर, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस, राइट. दिस इज द वी वैप, एंड in this lot, or this is not the वी वैप, this is the वी वैप session actually. I don't use वी वैप in the trading view. Volume weighted average price, moving average, okay, is coming this only. Maybe we can see this one, right. ओके. तो बहुत से लोग वी वेब को भी यूज करते हैं. तो वी वेब जैसे ही यहाँ पे मार्केट देखो वी वेब के आसपास आती है ऑलमोस्ट 10:30 पे, राइट. 10:30 पे आप यहाँ पे एंट्री अगर ले लेते हैं तो आपका स्टॉप लॉस आप लगा सकते हैं वी वेब के नीचे. तो काफी अच्छा मोमेंटम दिया, राइट. और यहाँ पे फिर देखो वी वेब को ऊपर की तरफ जब क्रॉस किया है तो यहाँ पे एक अच्छा खासा बुलिश पैटर्न बनाया है. 2 कैंडल जो रेड कैंडल के बाद में इसको फ्लैग पैटर्न बोलते हैं, छोटा सा फ्लैग पैटर्न बनाया है. इसके ऊपर में अगर आप बाय करेंगे तो वहां से भी आपको एक अच्छी खासी मोमेंटम मिल गई है मार्केट में. अभी अगर आपको सिर्फ मूविंग एवरेज यूज करना है तो बहुत से लोग मूविंग एवरेज यूज करते हैं, जिसको 20 मूविंग एवरेज बोलते हैं, वो भी आप यूज कर सकते हो. देखो स्ट्रेटजी कोई सी भी हो, आपको डेटा सिर्फ एक ट्रेंड बताएगा, उसके बाद आपको अपनी स्ट्रेटजी लगानी है, करेक्ट. मैं जैसे कि हम लगाते हैं इंडेक्स फायरिंग का चार्ट, राइट. इंडेक्स फायरिंग का जो क्लाउड है उसको लगाते हैं. अभी देखो EMA 9 है, इसको मैं जाके कर देता हूँ EMA 20. ओके. देखो यहाँ पे फिर देखो EMA 20 पे सपोर्ट लिया है मार्केट ने.
और यहाँ से मार्केट ऊपर गई। अब आपको ध्यान रखना है कि मैंने जब इनिशियली बताया था कि आपको फर्स्ट ट्रेंड जब शुरू हो रहा है मार्केट में, यानी कि जब 9:30 से 10 o'clock के बीच में, 10:30 के बीच में आपको डेटा में पता चल रहा है कि पॉजिटिवनेस है, तो आपको पहली बार एंट्री लोगे तो ज्यादा अच्छा है। जितना आप बार बार एंट्री लेने की कोशिश करोगे तो क्या होगा कि हो सकता है ट्रैप हो जाओ। सो यू हैव टू बिकम अ फर्स्ट mover or first entry taker in the market when the just data has shown you the positiveness or negativeness in the chart or in the data. Then only you go to the chart and take entry. And this easy FNO right now it's a free of for all, but I don't know when till when we are going to make it free. But till then you can enjoy this and also give your feedback. Our ईमेल आई डी इज easyfno123@gmail.com। वहाँ पे जाके आप अपना फीडबैक दे सकते हो। और उसके बाद अगर आपको स्टॉक में इंटरेस्ट है तो यहाँ पे मूवर्स का डेटा आपको लाइव मार्केट में दिखेगा। अभी मार्केट बंद है इसलिए कुछ दिख नहीं रहा है। लाइव मार्केट में आपको मूवर्स का डेटा दिखेगा, इंडाइसिस का डेटा दिखेगा। और अगर आप स्ट्रेटेजी यूज करते हो 920 की तो वो दिखेगी। तो दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग गाइस, अभी आपको बहुत से कुछ इसमें चेंजेस मिलेंगे। लॉट ऑफ चेंजेस विल बी देयर इन दिस easy FNO platform, right? So यहाँ पे अभी मैं sign off करता हूँ and hope you understood it how to only use this for identifying the trend. Then you can take entry based on your setup.